across the nations, across the globe. We are the stars of David. We are the stars of David in different parts of the world, but we are united. We are united not in the flesh, we are united in the spirit. And when we are united in the spirit, nothing can separate us. Nothing can separate us because we follow the Good Shepherd. And our Good Shepherd leads us to green pastures. Green pastures is where we are heading to. But people think that they are sitting on a comfortable green grass. And they do not know that they are under deception. And if they remain in deception, Satan is ready to attack. We will be praying as the Lord leads, and my warriors are with me today. I have 7 warriors with me. For those who are watching online and who cannot see the other, I'm telling you, today we are 8. Others may join as the time goes. But today we are 8. And 8 is a great number. It is a great number because it is a number which stands for the ear. And we listen through the ear. And you cannot see me because my computer refused to show me today. But no worries. As long as my voice reaches you, that is all that matters. I do not want everybody to see me, but I want everybody to listen to me. And why am I saying 8th is the number of ear? Because as I'm a doctor, I'm telling you, there are 12 cranial nerves. There are 12 tribes of Israel. There are 12 ribs. And the 8th nerve that supplies our body is the nerve which supplies the ear. So listen to what I'm about to say, because I'm saying what the Spirit is telling me, that Jesus is coming soon. Are you listening? He's coming soon, very soon. And we are preparing. We are 8, and there are many more waging war, as I was with another African lady, fiery lady in the morning, waging war. I've already been up since 5, waging war, so that you all do not have to wage war for many hours. And you can just receive the fire, receive the anointing, and walk with me on the path of glory. Let's uphold Quetta and our country, Pakistan, as we praise our God, the great I am, and we will enthrone him with our praises, with our lead worshipper, Shrib from Quetta. And before that, let me request Sister Nasra to pray a short prayer, and then we will praise God. Hallelujah. Can you hear me? टाइम की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है, इंस्टेंट काम होना चाहिए. Bushra, can you pray? Hallelujah. 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 Thank you, Father God. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. I can't hear you. Are you there? हेलो. Yes, I can hear you now. यस. आप ऐ खुदावंदा, हम शुक्र अदा करते हैं आपके रहम के लिए, करम के लिए, फजल के लिए, जो ऐ खुदावंदा आपने हम पे अपने बेटे यीशु की मार्फत पर किया. आपका शुक्र हो खुदावंदा, आपके नाम को जलाल देते हैं खुदावंद, क्योंकि सारा जलाल, सारी तारीफ, सारी हम सितारिश बुजुर्गी आप ही के नाम के लिए. हम शुक्र अदा करते हैं खुदावंदा. आज आपने हमें दूर और नजदीक से ऐ खुदावंदा, फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री एंड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड जमा किया है
सब मिलकर आपके नाम को जलाल देने के लिए अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करें। ऐ खुदावंदा, हम आपके कदमों में अपने मुल्क को लेकर आते हैं, दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंदा, आज आपका पाक रूह हमें बताए कि हम क्या दुआ करें, किस तरीके से अपने मुल्क के लिए दुआ करें, ताकि है खुदावंदा इस मुल्क में आपके नाम को जलाल मिले, Yes, इस Lord. मुल्क में तो है खुदावंदा जाना जाए, इस मुल्क में आपको है खुदावंदा शख्सी निजात दहिंदा जानकर लोग कबूल करने वाले Yes, बने, Lord. और है खुदावंदा इस मुल्क में तब्दीली आए, Yes, एक Lord. ग्रेट रिवाइवल आए, Yes, बेदारी Lord, आए। in the है name of खुदावंदा Jesus. यीशु के नाम से ऐसा ये दुआ करते हैं आसमानी बात कि आपका फजल भरा हाथ है Oh, खुदावंद इस मुल्क yes. पे मांगते हैं खुदावंदा। Yes. हम जो लोग जमा हुए खुदावंदा हमारी जिंदगियों पर, हम आपकी हुजूरी को मांगते और दुआ करते हैं, यू लीड अस, यू टीच अस, यू Yes. गाइड अस, Yes. हाउ टू प्रे Yes. फॉर आवर कंट्री। Yes. Holy Spirit, help us in intercession because without you, we are nothing. We are nothing without you. And there is nothing that is impossible for Oh, you. yes. आपके लिए Yes. कुछ नामुमकिन नहीं है। खुदावंद आपका कलाम फरमाता है, everything is possible for those who believe. और Yes. जैसा लिखा है खुदावंदा, it is written and we believe कि Yes. ऐसा ही है। और आज जब हम लोग जमा हुए हैं अपने मुल्क के लिए दुआ करने के लिए, हम ईमान रखते हैं कि ऐ खुदावंदा आप हमारे मुल्क में काम कर चुके हैं, आपका Yes. खुदा फजल हमारे मुल्क में आ चुका है, Yes, Lord. बेदारी आ चुकी है, रूहानी Yes, तौर Lord. पे ऐ खुदावंदा मुर्दगी दूर हो चुकी है, Yes, ऐ Lord. खुदा एक ग्रेट स्पिरिचुअल ब्रेक थ्रू आ चुका है, Yes, क्योंकि Lord. आप अपने लोगों को आज उनके घुटनों पे ले आए हैं। आज Yes, आपने Lord. हमें ऐ खुदा के सेशन के लिए बुला लिया है। हम Yes, शुक्र Lord. अदा करते हैं और शुक्र करते हैं Oh, और thank you. तारीफ करते हैं खुदा इस ग्रेट प्लान के लिए दैट यू हैव चोजन अस, दैट यू Yes. नहीं बल्कि आपने हमको चुना है, क्योंकि Yes. आपने पहले हमसे मोहब्बत की है खुदावंद। हम आपका Yes. शुक्र अदा करते हैं इस मोहब्बत के लिए जो आप हमारे मुल्क से करते हैं, यहाँ मौजूद एक एक शख्स से करते हैं खुदावंदा। और आप किसी की हलाकत नहीं बेशक, चाहते, बल्कि चाहते बेशक, हर एक बेशक, की तौबत नौबत पहुंचे। और बेशक. आप आ रहे हैं अपनी दुल्हन को लेने के लिए Oh, खुदावंद। yes, ये Lord, I am ready. है, आप चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग है Oh, yes. खुदावंदा आप जाए हैं खुदावंदा, इसीलिए आप है खुदा दुनिया के मुख्तलिफ कोनों से, हमारे मुल्क के मुख्तलिफ कोनों से आपने लोगों को जमा किया कि Yes, हम Lord. इंतजार कर सके या दुआ कर Yes, सके। Lord. खुदावंदा आपका शुक्र करते हैं ऐ खुदा अपनी लीडर के लिए जो है खुदा फिजिकली हमारी लीडर है डॉक्टर सविता, हम इनके लिए दुआ करते हैं अपनी बेटी को ऐ खुदा अपने लहू में छुपाए। हम ग्रेट प्रोटेक्शन को मांगते हैं अपनी बेटी की लाइफ में, दुआ करते हैं खुदा सिस्टर को अपने लहू में छुपाए, प्रोटेक्ट करें। होली स्पिरिट एक ग्रेट अनॉइंटिंग है खुदावंदा, इस ग्रेट मिशन के लिए हम रिलीज करते हैं, हम अपने हाथों को बढ़ाते हैं खुदावंदा आपकी बेटी की तरफ, और खुदा ने ग्रेट अनॉइंटिंग को रिलीज करते हैं आपकी बेटी की Oh, लाइफ में। thank you. I receive. खुदावंदा Yes, हम Lord. Thank यीशु you. के नाम से प्रोटेक्शन को क्लेम करते हैं, यीशु के Oh, नाम से thank you. हम और स्पिरिचुअल रेवलेशंस को क्लेम करते हैं यीशु के नाम से, Oh, हम thank you, और है Jesus. खुदावंदा हिकमत को क्लेम करते हैं यीशु Oh, के नाम thank you, से, Jesus. हम I और है receive. खुदावंद मौजूदाना कुव्वत को रिलीज करते हैं यीशु Oh, के I नाम से। receive. और Yes. दुआ करते हैं कि ऐ खुदावंदा जिस तरीके से आज ये हमें लीड करे, ऐ खुदावंदा ये फ्लैश में हमें लीड ना करें, बल्कि Oh, एज yes. यूजुअल हमेशा की तरह खुदावंदा आपके रूह से Oh, भर के आपकी yes. रूह की गाइडेंस में होते हुए हमें लीड Yes, करें। Lord. एंड टेक ऑल ऑफ अस डीपर, टेक Oh, ऑल ऑफ अस yes. डीपर Oh, लॉर्ड yes, जीसस, Lord. Yes, ताकि Lord. ऐ खुदावंदा हम ये कहने वाले बने कि ये ना जोर से और ना कुव्वत से, बल्कि आपके पाक रूह से, Oh, Rose. एज योर वर्ड Yes. Yes, डिक्लेयर। yes, तो yes, खुदावंद हम yes. आपका शुक्र करते हैं और आपके नाम को सरा जलाल देते हैं। आए खुदावंद रूह पाक हमें लीड करें, हम Yes. तैयार हैं, हम आपकी Yes. भेड़े हैं, हम आपकी Yes. आवाज सुनने के लिए तैयार हैं। Yes. लीड Yes. अस इन द Yes. नेम ऑफ जीसस वी प्रे, Yes. आमेन। Amen. Amen. What a great, what a powerful, what a fiery prayer. Now we were standing in the outer court. Imagine the tabernacle which has 3 places. 3 हिस्से थे उस खैमे के, हम पहले हिस्से में खड़े थे। दुआ पहला हिस्सा है और दूसरे हिस्से में अब हम दाखिल होने लगे हैं और वो है प्रेज। वहां पे 3 चीजें पड़ी थी और उनमें से एक क्षमादान था जिसकी 7 ब्रांचेस थी, दूसरा 12
रोटियां जो कि 12 कबीलों को आइडेंटिफाई करती थी, और फिर एक लुबान। ये वो जगह है जहां हम सताइश करेंगे और खुदावंद तख्त नशी होगा। लेट्स प्रेज। खुदावन का शुक्र और खुदावन की तारीफ हो, खुदावन में सब सुनने वालों की सलामती हो। और मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी बिल्कुल। हम खुदावन की प्रस्तिश करेंगे और हम प्रस्तिश स्टार्ट करेंगे जबूर से। जबूर 148। करो रब्दी हुन बड़े आई। ओ बेशक बेशक। He is awesome. He's an awesome God. करो रब्दी हुन बड़े आई, करो रब्दी हुन बड़े आई, सब आसमाना दी ऊंचाई, सब आसमाना दी ऊंचाई। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। तारीफ करन फरिश्ते सारे, तारीफ करन फरिश्ते सारे। ओ दियां फौजा मारन नारे, ओ दियां फौजा मारन नारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। चन सूरज चमकीले तारे, चन सूरज चमकीले तारे। सब आसमान ते पानी सारे, सब आसमान ते पानी सारे। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। उसने हुक्म कीता जारी, उसने हुक्म कीता जारी। खलकत पैदा होई सारी, खलकत पैदा होई सारी। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। ओस अजे मजबूत बनाए, ओस अजे मजबूत बनाए। जो कुछ भी टल ना जाए, जो कुछ भी टल ना जाए। तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर, करो तारीफ तारीफ करो बुलंदी पर। ओह हालेलुया हालेलुया। क्या ही भला है उसकी तारीफ करना। God is good all the time and all the time God is good. Don Main मुझे बहुत पसंद है, and when he sings this song and he says God is not having a bad day. If God is not having a bad day, we are his children, why should we have a bad day? And if we are having a bad day, then know that either it's Satan working in your life because you are not following God, or you are following God and he doesn't desire that you follow him. तो ग्लोरीफाई गॉड, तारीफ करते रहें तारीफ करते रहें तारीफ करते रहें। हमारा खुदावन तारीफ के लायक है। उसने पूरी दुनिया बनाई है, हमारे पैदा होने से पहले सब कुछ उसने बना लिया था हमारे लिए। और उसने जब हमें पैदा किया तो उसने चाहा कि हम
हमें कोई तकलीफ ना हो, हमें कोई तकलीफ ना हो, और उसकी पाकीज़गी, उसकी ग्लोरी हमें कवर करती थी, और हमें किसी कपड़े की भी जरूरत नहीं थी। लेकिन जब हवा ने फल खाया और उसने आदम को दिया, तो वो ग्लोरी, वो पाकीज़गी उनसे दूर हो गई, और उन्हें एहसास हुआ कि हम ने कपड़े नहीं पहने। उससे पहले उन्हें एहसास नहीं था, क्योंकि वो उसकी ग्लोरी में छुपे हुए थे, वो उसकी पाकीज़गी में छुपे हुए थे, क्योंकि रूह कोई लिबास नहीं पहनती, रूह पाकीज़ा होती है, रूह कोई लिबास नहीं पहनती। जब एक मुर्दा मर जाता है, हम उसको कफन उसको हम सूट पहनाते हैं। क्रिश्चियन, जो अगर कोई मुसलमान भाई हमारे देख रहे हैं, क्रिश्चियंस खासतौर से सूट पहनाते हैं। हम फीमेल जो है उनको जो है अपना उनको जो है अच्छी तरह से कवर करते हैं, और सॉरी जस्ट, और उसके बाद कफन में हम कफन बॉक्स में डालते हैं। लेकिन ये सब एक जिस्म, एक शेल होती है, रूह तो उसमें से निकल चुकी होती है, और रूह कोई कपड़े पहन के नहीं निकलती बाहर। तो रूह पाकीज़गी की निशानी है। लेकिन ये कपड़े अब हमें पहनने पड़ते हैं, और विमेन को ज्यादा कपड़ों की जरूरत होती है, उनको ज्यादा बनाव श्रृंगार की जरूरत पड़ती है, और ज्यादा खर्चा करवाती हैं। अगर फल नहीं खाती तो कोई खर्चा भी नहीं होता, और आदमी को खर्चा पड़ता है, करना पड़ता है। अगर उसने रोक लिया होता तो फिर खर्चे भी नहीं होते। लेकिन व्हाट्स डन इज डन, कैन नॉट बी अनडन। तो हमने सिर्फ अब तारीफ करनी है, परस्तिश करनी है। लेट्स कंटिन्यू, कैन टेल हिम हाउ गुड ही इज, बिकॉज हमारी डिसोबीडियंस के बावजूद उसने एक प्लान बनाया हुआ था, and that plan was the sinless lamb, and his name is Jesus. And he had to come after 4,000 years, because 4,000 साल उसने टेस्ट किया कि हमारे दिल कैसे हैं। और जब कमी महसूस हुई कि नहीं, हमारे दिल पाकीज़ा नहीं होते, तो फिर वो खुद आया हमें पाकीज़गी देने के लिए। लेट्स प्रेज हिम। खुदावन की परस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। बेशक बेशक। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो शाद मावो मुझको बना देता है। शाद मावो शाद मावो मुझको बना देता है। ओ यस। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। जब होती है कोताही कोई या बात गलत मुझसे, मैं करता नहीं हो जाता है जब काम गलत मुझसे। मेरा मसीह बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। बेशक। मेरा मसीह बिगड़े हुए मेरे काम बना देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियां देता है। शाद मावो शाद मावो मुझको बना देता है। जब भूल में जाता हूँ कभी बाइबल ओ की यस। बातों को, और नींद से ओ यस। उठ जाता हूँ घबरा कर ओ यस रातों लॉर्ड। को।
जब भूल मैं जाता हूँ Oh, कभी yes. बाइबल की बातों Forgive everyone, Father को, God. Forgive और us. नींद से Forgive us, उठ Father God. जाता हूँ घबरा कर Let us रातों fear को। you alone. मेरा मसीहा Oh, कर oh मेरे yes. सपनों को सजा Beshak, देता Beshak. He's come. He's है। come to me in dreams and visions. मेरा And he's coming मसीहा for real. कर Oh, मेरे yes, Yeshua. Come, सपनों my को Lord. सजा देता है। मेरा खुदा हर रोज मुझे नई खुशियाँ देता है। Oh, yes. शाद Shad, माँ शाद Shad, माँ वो मुझको बना bana देता deta है। hai. जब गैर हो जाते हैं कभी ऐसे ही खफा मुझसे, Oh, मुझसे तो कुछ और ज्यादा ही होते हैं. दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। Oh, yes, I've lost many जब friends गैर हो जाते हैं and कभी family. ऐसे ही खफा मुझसे, और दोस्त भी कर जाते हैं ऐसे ही जफा मुझसे। वो प्यार की Oh, फुलवारी से yes. मेरी राहों को सजा Oh, yes. देता Love, the first है। fruit of the Holy Spirit. वो प्यार की फुलवारी से Oh, the मेरी way He loves you, you do not राहों को know. सजा देता है। मेरा खुदा खुदा हर हर रोज रोज मुझे नई खुशियाँ देता देता है. है। शाद शाद मावो माँ, शाद शाद मावो माँ, मुझको मुझको बना बना देता देता है। है. Oh, hallelujah, hallelujah. Such a beautiful song. इतने अरसे के बाद ये आज मैंने सुना है. गॉड ब्लेस यू फॉर चूजिंग दिस सॉन्ग. ये मेरा संडे स्कूल का सॉन्ग है जो मुझे बहुत पसंद था और मैं बहुत जोश से गाती थी. और शादमानी और खुशी में फर्क है. इसमें कहता है रोज मुझे खुशियां देता है और शादमा मेरे दिल को करता है. शादमानी का मतलब है जॉय. शादमानी आपको सिर्फ यस्सु दे सकता है. ऐसी शादमानी कि उसमें आप किसी स्टॉर्म में हो, किसी मुसीबत में हो, किसी डिफिकल्टी में हो, आपके पास पैसे हैं नहीं है, आपके पास खाने को है नहीं है, आप शादमान होंगे. दैट इज जॉय. लेकिन खुशी डिपेंडेंट है चीजों पे. मुझे अच्छे कपड़े मिलते हैं, मैं खुश हो जाऊंगी. मैं जूती खरीदती हूँ, मैं खुश हो गई. मैंने गाड़ी खरीदी, मैं खुश होगी. मैंने घर खरीदा, मैं खुश होगी. खुशी आर्जी है और शादमानी जो है वो अबदी है. हमें अबदी शादमानी के पीछे भागना है और वो शादमानी जो है वो रूह का दूसरा फल है. प्यार मोहब्बत पहला फल है और शादमानी दूसरा फल है. और अगर हमारी जिंदगियों में रूह के फल नहीं है, रूह के 9 फल हैं, अगर वो फल नहीं है तो फिर खुदा हमें नहीं पहचानेगा. खुदा हमें नहीं पहचानेगा. और जब नरसिंगा फूका जाएगा तो जिसमें रो नहीं, पाकरू नहीं, वो यहीं रह जाएगा. सिर्फ वो ही उठाया जाएगा जिसके अंदर पाकरू है, जो जिंदा है और उसके अंदर पाकरू है. लेकिन जो मुर्दा है वो सब के सब उठा लिए जाएंगे. और डैनियल नबी के में हम की किताब में हम पढ़ते हैं, ये लिखा है. और आज मैंने शेयर भी किया कि वो सब के सब जाग उठेंगे जो मो गए. उनमें से कुछ आग, हमेशा की आग में डाल दिए जाएंगे और कुछ वो जहां पे पहुंच जाएंगे जहां से हम गिराए गए थे. तो ये वक्त करीब आने वाला है. हम शादमान हो और हम नारे लगाएं और हम गाएं, यस्सु की जय जयकार करें. Hallelujah. Oh, thank you, Jesus. खुदावन का शुक्र, खुदावन की तारीफ।
प्रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे जैसे मैं मूसा के साथ साथ था। ओह यस, अनदर वन ऑफ माय फेवरेट। और ये हमने अभी बच्चों ने सबने हनी ने मिलके गाया था, पेंटिकॉस्ट सेलिब्रेट की थी जब फ्राइडे को, पिछले फ्राइडे को, और आज पिछले फ्राइडे लाहौर में गाया गया स्कूल में, और आज हमारे दूसरे वर्ष पर इधर कोयटा से गा रहे हैं। और हम बढ़ते चले जा रहे हैं क्योंकि जिस जगह पे कदम रखेंगे ये वादा है, लेकिन ये वादा उसके लिए है जो रूह के साथ चल रहा है, जिसके रूह जिसके अंदर पाक रूह है। क्योंकि अगर आपके अंदर पाक रूह नहीं है तो आप कहीं भी पहुंचे वो जगह को आप क्लेम नहीं कर सकते। तो मैंने बहुत सी जगहें क्लेम की हैं यीशु के लिए, और रूह में की हैं, और दुनियावी तौर पे हमारी नजरों के सामने तभी आएगा जब परफेक्ट टाइम होगा। आमीन। आमीन। खुदावंद का शुक्र, खुदावंद की तारीफ करो। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। Oh yes, that's a promise. दस्तबरदार न Oh, होगा he will मैं never leave us. तुझसे, That's a promise. दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। Hallelujah. That's the promise of our जैसे Father. मैं Our मूसा Father के साथ साथ who is in heaven. था, ऐसे वैसे ही तेरे भी मेरे साथ साथ रहूंगा। यशवा Oh, yes. हुक्का तेजा Joshua generation has been prepared. We are the Joshua generation. And we started this war in Kashmir. पहुंचा जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, जहाँ टिकेगा तेरे पाँव का तलवा, वो जगह मैं तुझे दे दूंगा। वैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। Hallelujah. Yes. हौसला मजबूत हो जा, मजबूत हो जा, हौसला तेरे रख, दिल ना हो खौफ न था। खौफ ना खा. हौसला रख Just fear मजबूत God. हो He जा, is with us. तेरे दिल Nothing ना can do हो anything खौफ न till the time our था। Father decides. जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने, जिंदगी भर कोई शख्स तेरे सामने बिल्कुल ना कभी खड़ा रह Oh, सकेगा। amen. ऐसे में मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। मेरे कलाम से न दाएं मुड़ना, मुड़ना, मेरे मेरे काम कलाम से से न न बाएं बाएं मुड़ना, मुड़ना. 10 है मेरे काम. कलाम से न दाएं मुड़ना, मेरे काम से न बाएं मुड़ना। मुड़ जाए मुंह चाहे लोग ये सारे, Oh, मुड़ yes. जाए मुंह चाहे लोग ये Do not सारे, fear if someone मैं leaves you. तुझसे ना मुंह As long as मोड़ूंगा। Father is with us. जैसे मैं मूसा के साथ साथ था, ऐसे ही तेरे भी साथ रहूंगा। Hallelujah. Hallelujah. दस्तबरदार न होगा मैं Never. तुझसे, Never. दस्तबरदार न होगा मैं तुझसे, और तुझे न कभी छोड़ूंगा। Oh, if he had to leave us, he would जैसे never have come मैं after 4,000 मूसा years. के साथ In साथ flesh. था, He is a spirit. He is holy. ऐसे He would not have ही come. He would not have तेरे taken भी up these साथ sinful clothes if he had रहूंगा। not loved us. Oh, नाम का शुक्र, hallelujah. नाम की तारीफ, Hallelujah. He नाम का loves शुक्र। you. People know that our God loves you. वो आपसे बहुत प्यार करता है.
बहुत ज्यादा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वो पाक है और हम नापाक हैं। और जब तक हम पाकीज़ा नहीं हो जाते, हम उसकी आवाज नहीं सुन पाएंगे। और पाकीज़गी, जिस्म की पाकीज़गी से उसे कोई लेना देना नहीं। जिस्म की पाकीज़गी माने नहीं रखती जितनी कि एक रूह की पाकीज़गी माने रखती है। आप नहाए धोए बगैर भी चर्च जा सकते हैं, वो सुनेगा। आपके कपड़े अगर गंदे हैं और अगर वो फटे में हैं, कोई गरीब है, कोई कुछ है, वो उसकी आवाज भी सुनेगा। हमें धो के उसके पास जाने के, धुल के जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि खुदा रूह है। और कलाम कहता है रूह और सच्चाई से जो उसकी परस्तिश करते हैं। और रूह और सच्चाई से हम कैसे परस्तिश कर सकते हैं? जब हम रूह का पहला हथियार अपनी जिंदगी में अपना लें, और वो है सच्चाई। कमर बस्ता हो जाए सच्चाई के साथ, और वो राइचियसनेस जो हमारे खुदा की राइचियसनेस है, वो हम ओढ़ लें। और वो क्या है? वो यस्सु का लहू है। जब हम वो ओढ़ लें तो फिर हम पाक किए जाते हैं, और हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश कर सकते हैं। तो फिर वो हमारी दुआएं सुनता है, क्योंकि वो पाकीज़ा लोगों की दुआ सुनता है। और पाकीज़ा हम में से कोई नहीं, क्योंकि कलाम कहता है all have sinned and fall short of the glory of God. All. It doesn't say woman. It doesn't say man. It says all. Everyone born of Adam and Eve are sinners. But the blood, the precious blood of the Lamb, Jesus Christ, is able to wash us and make us pure so that we can enter the Holy of Holies, the third most holy place, जो कि उस खैमा का वो हिस्सा था जहां पे सिर्फ काहिन जा सकता था। बर्रे के लहू से वो बर्रा को ज़बह करना लाजिम व मलजूम था। वो बर्रा जो कि बिल्कुल प्योर था, पाक था, उसमें कोई ऐब नहीं था, जिस्मानी तौर पे वो परफेक्ट था। उसके दांत पूरे, उसके सब चीज पूरी, वो पाक था, वो पूरा ठीक परफेक्ट होना चाहिए था फ्लैश में। उसकी कुर्बानी के बाद वो दाखिल हो सकता था, वो होली ऑफ होलीज में आ सकता था, और वो खुदा के हजूर गुनाह, सब गुनाहों को लेके पहुंचता था, माफी मांगता था। लेकिन आज हमें किसी काहिन की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो अजीम बर्रा जो जो हमारे लिए मसलूब हुआ, वो बर्रा हमें खून से पाक करके हमें वो जगह मुकाम पहुंचा देता है जहां हम होली ऑफ होलीज में हम अपने घर बैठे भी पहुंच सकते हैं। हम कहीं में हो, हम वो जगह पहुंच सकते हैं, बशर्ते कि आप खून से खरीदे गए। क्या आप ईमान ले आए? और ईमान लाने के बाद क्या आप उसके पीछे चल रहे हैं कि आप उस पाक तरीन मकाम में पहुंच जाएं? Let's continue to praise God and worship Him in His holiness. His holiness. Hallelujah. Hallelujah. रस्तिश में आगे बढ़ते हैं और गीत गाएंगे, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। Oh yes, exactly. ये होलीनेस है कि आपने अपनी शम्में जलाए रखनी है, वो आने वाला है। और अगर शम्मा बुझ गई हवा के जोर से, उसका क्या मतलब है कि आप आंधी से डर गए, और आपने अपनी क्षमा जो है क्या के हाथ नहीं रखा। अपनी क्षमा को जलते रहने दें, उन पे हाथ रखें, जब हवा आती है हाथ रखें, और उससे भी बढ़ के उसमें तेल रखें। अगर तेल खत्म हो जाएगा तो क्षमा बुझ जाएगी। कई लोग थोड़ी सी कुप्पी में तेल लेके चल रहे, और उनकी ऑयल खत्म हो गए, और उनके दिए मध्यम पड़ रहे हैं, और खुदावंद मुझे दिखा रहा है। म्यूट आ रहा है यार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Let's
ऑनर दिस प्रेजेंस। काइंडली सब म्यूट रखें। अगर आप ड्रॉप भी करते हैं तो जब आप एंटर हो तो प्लीज अभी निहायत संजीदगी के साथ हम एंटर हो रहे हैं उसकी होलीनेस में। दिस इज द प्लेस ऑफ वर्शिप। और खुदावंद हमारी दुआएं मुनाजातें सुनने के लिए तैयार है। हमने उसके तख्त नशी किया है और वो हमारी दुआओं पे कान लगाए बैठा है। हम अपनी क्षमाएं उसके ऑयल से, जो उसका ऑयल रूह का ऑयल है, वो हमें देने के लिए तैयार है। क्षमा जलाए रखना। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने Oh yes, oh वाला yes, I'm looking up. है। I'm looking up every हाँ, single day. He's coming. सॉरी जी। नहीं नहीं, आप गाते रहे, आप गाते रहे, मैं बीच में कुछ ना कुछ बोलती रहूंगी, आप अपने गाना नहीं बंद करना। He's coming सॉरी जी, because अच्छा ठीक है। हाँ, मुझे ना विजन्स जो है ना बहुत ज्यादा आ रहे हैं आजकल। सो आई कैन नॉट होल्ड माई सेल्फ, सॉरी फॉर दैट। यू कंटिन्यू टू सिंग। नहीं नहीं नहीं, इट्स ओके, वो मैं सुन नहीं पाया था। अच्छा अच्छा, मैं ये कह रही हूँ कि आई कैन सी जीसस इज कमिंग, आई कैन सी हिम कमिंग। मीन लेट्स कंटिन्यू। कंटिन्यू कंटिन्यू। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। बुझने ना देना तुम मशलों को कभी, Oh yes. बुझने ना देना तुम मशलों को कभी। बेदार रहना हरदम, सो जाना ना कभी। Oh yes. बेदार रहना Stay awake. हरदम, सो Keep जाना praying. ना कभी। एक दूजे को बतलाना, Hmm. यीशु आने वाला Oh yes, है। Lord, you're telling. दूजे को बतलाना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। आंखें उठाए रखना, यीशु आने वाला है। शम्में जलाए रखना, यीशु आने वाला है। पूरी हो रही है नबूवतें Oh yes. सभी, पूरी हो रही है नबूवतें सभी। ठंडी पड़ गई है मोहब्बतें सभी। ठंडी पड़ गई है Oh मोहब्बतें सभी। yes. Oh yes, Lord. वादे तोड़ निभाना, यीशु आने वाला Oh Lord. है। Revive the love. वादे तोड़ निभाना, यीशु आने वाला Oh, वादा है। निभाएं, वादे निभाएं। आंखें उठाए रखना, यीशु यीशु आने आने वाला वाला है। है, आंखें ये उठाए उठाए रखना, रखना, यीशु यीशु आने आने वाला वाला है। है। तुम्हें जलाए रखना, यीशु आने वाला है। सुला के पहनो जूते,
और जाओ दुनिया में, धुला के पहनो जूते, Hallelujah. और Yes. जाओ दुनिया Yes, Lord. We are going. We में। are wearing those यीशु shoes. आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। यीशु आ रहा है, बशारत दो दुनिया में। दरवाजा दिल का खोलो, Oh, yes. Open your यीशु hearts. आने Open the door. He's वाला knocking, है। people. He's knocking. He's दरवाजा coming. दिल का खोलो, यीशु Behold, I stand at the door आने and knock. वाला If any है। man hears my voice, I will come in. आंखें उठाए रखना, यीशु Yes. आने वाला है। आंखें सुआने वाला है, शम्मे जलाए रखना, यीशु आने वाला है। Hallelujah. Yes, he is हालेलुया, प्रेज द coming. लॉर्ड। He is coming. Praise the Lord. और श्रेकी एक गवाही के तौर पे क्या मैंने आपको बताया था आज मैं किस चीज पे बात करूंगी, मैसेज क्या होगा? आई गेस शायद बताया था। नहीं, मैंने आपको नहीं, नहीं मेरा ख्याल बताया। नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं बताया, नहीं नहीं बताया, नहीं बताया। बताया। जी एग्जैक्टली जी। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि मैंने शेकी को नहीं बताया, लेकिन ये होती है रूह की ये गानगत। और आज ये तमाम गीत जो है ये शेकी ने खुद ही रूह की गाइडेंस से चुने हैं। और अब मैं यही करूंगी कि मैं लोगों को बताती नहीं हूँ, और जो रूह में चल रहा है मुझे खुद पता चल जाता है कि रूह उसको कितना वो रूह की आवाज सुन रहा है और कितनी को सुन रहा है। जो गीत अभी इन्होंने गाया वही आज का मैसेज है, सुलह के जूते। बेशक, आमीन आमीन, प्रेज द आमीन लॉर्ड, आमीन, प्रेज द प्रेज द लॉर्ड। लॉर्ड। कोई और भी गीत गाया जा सकता था और उनको मैंने बताया नहीं था, और खुदा गवाह है कि मैंने उनको नहीं बताया था, क्योंकि एक्चुअली आजकल गवाहियां बिकती हैं। खुदावन को, लोगों को खुदावन का खौफ नहीं है, गवाहियां बिकती हैं। गवाहियां, लोग मिरेकल्स की गवाहियां भी बेचते हैं। 10,000 देते हैं, तुम आके बोलना हम ठीक हो गए। इनको खुदा का खौफ नहीं है। और जैसे कि मैंने ग्रुप में भी कहा है, 15 जून ऑनवर्ड्स ये जितने जो झूठे पास्टर्स हैं जो कि गवाहियां खरीद रहे हैं, जो कि यीशु को बेच रहे हैं, उन पे खुदावन का कहर नाजिल होगा। आई एम नॉट सेइंग ऑन 15th ऑफ जून, आई एम सेइंग फ्रॉम। दैट मीन्स कि खुदा अभी भी, वो कलाम कहता है, वो कहर करने में धीमा और शफकत में गनी है, और वो अपना कलाम को सच्चा साबित करके दिखाता है, और वो उनको अभी भी टाइम दे रहा है। और ये मेरे जो सुन रहे हैं, अगर कोई ऐसा पास्टर सुने इसको शेयर भी करे, और अगर कोई ऐसा पास्टर सुनता है जो ये कर रहा है, उसको पता चल जाएगा, तो खुदावंद उसको अभी भी एक मौका आखिरी दे रहा है कि वो अपनी राहें दुरुस्त कर ले और सुलह के जूते पहन ले, कमर बस्ता हो जाए, सच्चाई के बेल्ट के साथ कमर बस्ता हो जाए। अगर वो झूठ बोल रहा है लोगों को दिखाने के लिए कि मैं बहुत ज्यादा पारसा हूं और मैं बहुत ज्यादा पाक हूं और मेरे में रूह काम करता है, तो ये जो शोबिज है ना, ये बंद होने वाला है इनका। और अगर बेहतर है कि ये माफी मांग के रिपेंट करके शोबिज बंद कर दें, अदरवाइज इन पे जब कहर आएगा ना, तो ये खुद ब खुद फिर बहुत धमाके के साथ बंद होएगा। तो लेट्स कंटिन्यू our worshiping our Father. Hallelujah. 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 Oh Lord God, you're so good. हेलो जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। अच्छा, मैंने 4 गीत रखे थे, बट ओके, नहीं बट मुझे रू कह रहा है कि कोई एक और गीत गाएं, एंड देन वी विल कंटिन्यू विद द मैसेज। मुझे रू में एक जरूर है कि जरूर हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जरूर जरूर जरूर। लेट मी जस्ट गिव मी 2 मिनट। हाँ जी हाँ जी, और मैं आप ये एक बिकॉज वर्शिप का टाइम है और मुझे इस वक्त रू गाइड कर रहा है कि एक, ऑल्दो ये वर्शिप का सॉन्ग आपने लास्ट सॉन्ग वर्शिप का ही गाया था, लेकिन जी जी एक जो है ना पाक रू की मुनासबत से कोई एक गीत आपके पास, आपकी डायरी होगी, वो बेशक चाहे उसके 2 मिसरे आप गा दें, जरूर लेकिन जरूर जरूर। हाँ जी वो जस्ट आप गिव मी गाएं। 2 मिनट्स, 2 श्योर मिनट्स। श्योर। तो खुदावन जो है वो रूह है, कलाम कहता है,
और जो रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश करते हैं, और हम रूह और सच्चाई से उसकी परस्तिश कर रहे हैं। और ये पाक जमीन खुदावंद की जो है, ये हम उसको दे दें। और ये पाक जमीन कौन सी है? हमारे दिलों की पाक है। ये पाक सरजमीन हम अपनी मुल्क के लिए गाते हैं, पाक सरजमीन शादबाद। मैं वहां पे पैदा हुई, आप लोग वहां पे पैदा हुए, लेकिन ये पाक नहीं रही। हालांकि हम ये एंथम, नेशनल एंथम रोज स्कूल में गाते हैं, बच्चे 5 दिन गाते हैं, लेकिन ये जमीन पाक नहीं है, क्योंकि इसने बहुत से अम, पाकीज़ा लोगों का खून पिया है। और जब एक जमीन खून पीती है तो वो पाक नहीं रहती। तो आए हम अपनी सरजमीन के लिए आज दुआएं करेंगे, जैसे कि हम इस वक्त परस्तिश में कि गहरे मसे में जा रहे हैं। अपने अपनी सारी ख्यालात को खुदावन के ताबे करें, उसकी रूह को काम करने दें। क्योंकि जब हम इधर उधर ख्यालात सोचते हैं और अपने काम के बारे में अगर सोचते हैं कि कल क्या हम करेंगे या अब अगले घंटे क्या करेंगे, तो फिर पाकरू में ये गानगत नहीं के साथ गानगत नहीं आती, और आपने वो मसा रिसीव नहीं करते। तो एक एक सेकंड साथ रहे मेरे, ताकि मसा आप में मुसलसल आप तक पहुंचता रहे। ये एक ऐसी डोर है मसा की, जैसे कि एक ऑयल जब एक कुप्पी में डालते हैं तो वो जब तक ऊपर तक भर ना जाए उसमें भरते रहते हैं। तो आप वो कुप्पियां हैं, और मैं चाहती हूँ कि आपकी कुप्पियां भरी रहें। और जब भी हम मिले, हम जब परस्तिश के लिए मिले, जब भी, जैसे कि हम कल मिलेंगे, तो रोज आपकी कुप्पी में तेल जाए रोज, ताकि क्षमा जलती रहे, क्योंकि यीशु आने वाला है। यीशु आने वाला है। और 10 कवारियां थी जिनको वो मिसाल याद है, और अगर नहीं याद तो वो पढ़े। 10 कवारियां थी, उनमें से 5 के पास शम्मे थे और वो जल रहे थे, और वो दूसरी जो 5 थी उनके पास जो दिए थे वो नहीं जल रहे थे। तो अगर आपके पास दिए हैं और वो जल नहीं रहे, तो आप यही रह जाएंगे। दिया होना गारंटी नहीं है आपका रैप्चर होना। दियो में ऑयल होना गारंटी है आपका रैप्चर होना। So make sure you have the oil of the Holy Spirit, the precious oil. Have you been anointed? Are you walking in truth and in faithfulness to God? Then He's ready to favor you. And favor from God can move mountains. आपका कभी कोई, आप स्कूल में पढ़ा है, आपने देखा, और टीचर्स के फेवरेट्स होते हैं। घर में माँ बाप के बच्चे फेवरेट्स हो जाते हैं, उसको ज्यादा फेवर मिलती है। कभी उसको ज्यादा खाना मिल जाता है, कभी फ्रूट मिल जाता है, कभी कपड़े मिल जाते हैं, कभी टॉफियां मिल जाती हैं। स्कूल में जो हो, मैं फेवरेट थी, लेकिन मैं किस लिए फेवरेट थी? बिकॉज आई वॉज द बेस्ट स्टूडेंट। मैं हमेशा टॉप करती थी, तो मैं टीचर की फेवरेट थी। तो फेवरेट खुदावन भी फेवर, कलाम कहता है कि वो किसी की तरफदारी नहीं करता, वो तरफदारी नहीं करता, लेकिन वो जो प्रोमिसेस कलाम में लिखे हैं, वो उसकी जिंदगी में वो पूरा करना शुरू करता है, जो उसके पीछे चलना शुरू हो जाता है। एक भेड़ की तरह, जो भेड़ अच्छे चरवाहे की आवाज सुनती है, then that person finds favor in the Lord, and the promises of the scripture are fulfilled, are fulfilled. So, are you ready with the song? जी जी बिल्कुल जी, रेडी हूँ। let's be united in the spirit and listen what the spirit is saying. हम और गहरे मसे में जा रहे हैं, और गहरे मसे में। खुदा का शुक्र, खुदा की तारीफ हो। हम गीत गाएंगे है रूहे पाक उतरा। Oh yes, Father God, yes. You are here, you are amongst us. लेकिन ये उतर आने की हम बात वो कर रहे हैं, हमारी पाक सरजमीन जिसको हम कहते हैं, वहां पे उतरा खुदावंद पाक रूह। तू हमारे साथ तो चलता है, लेकिन लोग तुझे नहीं जानते, क्योंकि तू यीशु को नहीं जानते। ऐ रूह पाक उतरा, दिलों में उतरा,
दिलों में उतरा, रूह पाक दिलों में उतरा। खुदावंद का शुक्र और खुदावंद की तारीफ हो। ए रूहे पाक तरा, ए रूहे पाक उतरा, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक तरा। Oh yes, sweet Holy Spirit. जज्बा करता रसूलों का, Oh yes, Lord. जज्बा करता वो जुनूनी जज्बा जो रसूलों रसूलों का था, वो अता कर। जज्बा करता, जज्बा करता, पौलुस का जज्बा, जज्बा पीटर का जज्बा, करता रसूलों जेम्स का का। जज्बा, मैथ्यू का जज्बा, ए रूहे oh yes, पाक मार्क का जज्बा, तरा, जॉन का जज्बा, oh yes, ए मैरी का जज्बा, रूहे पाक उतरा, oh ए रूहे पाक, ए रूहे पाक, ए रूहे पाक ल्यूक का जज्बा, तरा। रूहों का बन जाऊं चरवाहा, oh yes, याकूब का जज्बा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा, yes Lord, रूहों का चरवाहा, रूहों का चरवाहा, रूहों का चरवाहा, रूहों का बन जाऊं चरवाहा। hallelujah, ए रूहे पाक तरा, oh yes Lord, ए रूहे पाक उतरा, oh yes Lord, ए रूहे पाक, ए रूहे दिलों में उतरा, पाक, दिलों में ए उतरा, रूहे पाक दिलों में उतरा। तू तरा। जुम्बिश कर रहा है, तू पाकिस्तान में जुम्बिश कर रहा है, हिकमत से पाकिस्तान तू में जुम्बिश कर, कर रहा है। ए रूह पाक दिलों में उतरा, जज्बा कर रसूलों का, हिकमत से तू कर मुझे मामूर, हिकमत से मामूर कर हमें, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर, हिकमत से तू कर मुझे मामूर। ए रूहे पाक तरा, ए रूहे पाक उतरा, दिलों में दिलों में दिलों में दिलों में रूह पाक, ए रूहे पाक, ए धो डाल, रूहे धो डाल पाक, जमीन सर, हमारी ए जमीन रूहे सरजमीन पाक पाकिस्तान को धो डाल, उतरा। यीशु के लहू से धो डाल। Praise the Lord. खुदावंद का Praise the शुक्र, Lord, खुदावंद का praise the शुक्र। Lord, praise the Lord. What a wonderful song. ये भी बहुत अरसे के बाद मैंने सुना। इसकी इतनी खूबसूरत लिरिक्स हैं। जज्बा कर रसूलों, जज्बा कर अता रसूलों का। वो जज्बा, वो जुनूनी जज्बा नहीं है। हमारे जो क्रिश्चियंस हैं वो सिर्फ ट्रेडिशनल क्रिश्चियन बन के रह गए हैं। चर्चेज में जाते हैं और ट्रेडिशन है कि जी बस चेक करेंगे कितनी ने दुपट्टा पहना है, नहीं पहना, कौन सिगरेट पी रहा है, कौन शराबी है, कौन कबाबी है, बस वो जज करेंगे। लेकिन खुद वो क्या कर रहे हैं, कितने चंदे वो खा रहे हैं, वो उस पे उनकी नजर नहीं जाती।
तो मसीह तो आया ही गुनहगारों के लिए, वो तो आया ही शराबी, कबाबी, प्रोस्टिट्यूट्स, हर महसूल लेने वाला, हर एक के लिए वो आया। वो कलाम कहता है कि वो बीमारों के लिए आया, वो सेहतमंद के लिए नहीं आया। इसीलिए वो कलाम रब्बी के लिए नहीं था, वो कलाम मैरी के लिए था जो प्रोस्टिट्यूट थी। He has come for the sinners. और हमें जो गॉस्पेल ऑफ पीस है, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मार्क, गॉस्पेल ऑफ लूक, गॉस्पेल ऑफ जॉन, अभी मैंने गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू ऑर्डर किया, जिसे मुझे पाकरू ने गाइड किया था कि लोगों को गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू दें, वो जाने कि मैं क्या क्या कर सकता हूं उनके लिए। सबसे मैक्सिमम मिरेकल्स की जो जिक्र है वो गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में है, और वो रेडी है मिरेकल्स करने के लिए। लेकिन कौन है जिसमें रसूलों का जज्बा है कि वो पाक रूह को दिल में लेके चले, रूह की आग दिल में लेके चले, और उनके साय से ही लोग ठीक हो जाएं, उनके कपड़े छूने से ही लोग ठीक हो जाएं। वो जज्बा किसमें है? वो हमारे पासवान में है क्या? क्या वो रोजे रख के कलीसिया के लिए रोते हैं, या वो कलीसिया के घर जाते हैं खाना खाने और चंदा लेने के लिए? या वो फिर बाहर के डोनेशंस मांगते हैं अपने घर बनाने के लिए और अच्छी गाड़ी लेने के लिए, और अपनी बेटी को बाहर भेजने के लिए, और अपने बेटे को बिजनेस दिलवाने के लिए, क्योंकि बेटा पढ़ता पढ़ता नहीं और उसके पास कोई हुनर नहीं, तो डोनेशन के पैसे से उसको मैं बिजनेस तो स्टार्ट करवा सकता हूँ। मेरे मरने के बाद मेरा बेटा तो भूखा नहीं मरेगा, वो पादरी भी नहीं बन सकता क्योंकि वो है ही बहुत अयाश। उसको मैं सांप भी लेके दे देता हूँ क्योंकि उसकी ख्वाहिश है कि वो सांप पेट रखना चाहता है। तो ऐसे पासबान जो है हमारे मुल्क में पाए जाते हैं, और मुझे किसी पासबान का कोई डर नहीं, क्योंकि मैं अच्छे चरवाहे के पीछे चलती हूँ, और चरवाहा मुझे हरी चरागाहों में लेके जा रहा है, और मैं मौत से भी नहीं डरती, और ये मौत से डरते हैं। इनके साथ गार्ड्स चलते हैं, इनको पता ही नहीं कि जब मौत का फरिश्ता खुदावंद भेजेगा तो किसी गार्ड को वो, कोई गार्ड इनको बचा नहीं सकेगा, क्योंकि वो स्टैम्प्ड होता है। उस मौत के फरिश्ते के पास नाम का स्टैंप होता है, और वो ठीक उसी बंदे के पास पहुंचता है या बंदी के पास पहुंचता है, और आप उस मौत के फरिश्ते से छुप नहीं सकते, और ना आप उससे मिलके कह सकते हैं कि कुछ साल बाद आना, क्योंकि ऐसा हुआ था कलाम में। मौत किसी के लिए लिखी गई थी और उसने कुछ साल मांग लिए थे और उसको मिल गए थे, लेकिन अब इतना टाइम ही नहीं है, क्योंकि यीशु आ रहा है। मौत दंदनाती घूम रही है, वो देखती है कि किसको फाड़ खाए, और कौन है जो सुलह के जूते नहीं पहन के चल रहा। आज हम तीसरा जो आर्मर ऑफ गॉड की सीरीज चल रही है, जो मैं प्लान कर रही थी वो कल मुझे ये पेश करना था, क्योंकि मैंने आप लोग से कहा था कि हर सैटरडे को मैं आपको वेपन्स के बारे में बताऊंगी। लेकिन ये रूह की ने मुझे रात से मुझे ये क्विकन किया कि नहीं, देर नहीं करो, कल नहीं आज बताओ कि सुलह के जूते पहने। ये तीसरा वेपन है, और जो हमारे कुछ जो 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 रेगुलरली सैटरडे को ज्वाइन करते हैं, क्योंकि फ्राइडे को काम करते हैं लोग, वो आज नहीं शामिल, लेकिन वो रिकॉर्डिंग में देख सकेंगे। एक दिन पहले ही ये रिकॉर्ड हो गई है, क्योंकि मैं कल के लिए प्लान किया था मैसेज, लेकिन पाखरू ने कहा नो, तुम देर कर रही हो, आज बताओ आज। तो हम क्या वो सुलह के जूते पहन के, जो कि क्या है, आर्मर ऑफ गॉड है। एक वो रोमन सिपाही जो कि जूते पहनता था, उसके जूते तो बड़े स्ट्रॉन्ग और पुख्ता होना चाहिए थे, क्योंकि जब वो चल के जंग जाता था जीतने के लिए, तो अगर उसके चप्पल मप्पल में, जैसे कि लेडीज की चप्पल होती है, वो पहन के अगर जाता, या खुस्सा सुस्सा, या जो दूसरे चवट वगैरह है, वो अगर पहन के जाता वॉर में, तो वो तो उसका जूता टूट जाता। उसको मजबूत जूते पहनने थे, ताकि उसका जूता टूटे नहीं और वो तेजी से दौड़ सके, क्योंकि अगर उसका जूता टूट जाएगा, और वहां पे तो पत्थर भी है, पथरीली जमीन है, वहां कोई कारपेट नहीं बिछा हुआ, तो वो नंगे पैर उसको भागना पड़ेगा, और उसके पैरों में पत्थर भी घुसेंगे, फिर वो ब्लीडिंग भी होगी, तकलीफ भी होगी, फिर उसकी कुवत कम हो जाएगी।
जंग में कुव्वत कम हो जाएगी जब उसके पैर जख्मी होंगे। तो कहा है सुलह के जूते पहनने के लिए। सुलह, सुलह का शहजादा किसे कहा गया? यीशु को। कौन ऐसा प्रॉफिट है जिसको सुलह का शहजादा कहा गया? खुदावन ने किसी को नहीं कहा। क्यों? क्योंकि उसने जान दे के सुलह करवाई, जान दे के सुलह करवाई। यीशु सिर्फ वो है जो कि सुलह का शहजादा कहलाया गया। ही इज द प्रिंस ऑफ पीस। और लोग पीस टॉक्स हो रही हैं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही मिडल ईस्ट में है। पीस कैसे हो, पीस कैसे हो? वहां पीस ही नहीं होने पाता। और पीस तब तक नहीं होगा जब तक कि कलीसिया नहीं उठाई लाई जाएगी। और पीस की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि जैसे ही पीस होगा थर्ड टेम्पल जो है वो बनना शुरू हो जाएगा। और उसके बनने में कोई बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब कुछ रेडी है। हमने वो तमाम चीजें देखी हैं, जब हम इज़राइल गए थे वो हम तमाम चीजें देख के आए हैं। वो मेनोरा भी रेडी है, वो जो काहिन के लिबास है जो उन्होंने पहने, वो सब कुछ रेडी है। सिर्फ एक बाहरी बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का नक्शा भी है, वो हम नक्शा भी देख के आए हैं। और मैं शेयर भी करूंगी ग्रुप में, जब हम 22 में गए थे। सब कुछ रेडी है, उन्हें सिर्फ एक दस्तखत चाहिए, एक डॉक्यूमेंट भी रेडी है कि वो दस्तखत हो और बिल्डिंग तैयार होना शुरू हो। और वो कहते हैं कि विद इन 8 to 12 months तैयार हो जाएगी। और वो पुराना जमाना नहीं है कि जिसमें 12-12 साल, 20-20 साल लग जाते थे बिल्डिंग तैयार होने में। और हो सकता है कि इससे भी जल्दी वो तैयार हो जाए, कर लें, क्योंकि आजकल जो हमारे पास इवन सिविल इंजीनियरिंग में जिस तरह से बिल्डिंग्स बनती है वो बहुत क्विकली बनती है। एटलीस्ट इंग्लैंड, पाकिस्तान की बात नहीं करी, लेकिन इंग्लैंड में और जो कि कंट्रीज हैं, जो कि वेस्ट के कंट्रीज हैं, वहां पे जो कि चीजें हैं वो एडवांस बहुत ज्यादा हो गया कि जल्दी चीजें, वो जल्दी काम करना चाहते हैं। और पाकिस्तान में तो एक ही चीज की जो है वो रिस्पेक्ट नहीं की जाती, और वो है टाइम। और जो शख्स टाइम की रिस्पेक्ट नहीं करता, खुदा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता। मेरी मदर ने मुझे टाइम की पाबंदी करना सिखाई, जो कि मैं भी 100% अपनी मदर की तरह, अपने फादर की तरह नहीं कर पाती। मेरे फादर इतने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने कहा, आपने देखा होगा, आप सब शादी ब्याह में जाते हैं और दुल्हन बहुत लेट आती है क्योंकि वो पार्लर में लेट हो जाती है। अच्छी बात है, दुल्हन को अच्छा लगना चाहिए। शी इज द हाईलाइट ऑफ दैट इवनिंग। ग्रूम से ज्यादा दुल्हन पे निगाह सब करते हैं कि दुल्हन कैसी लग रही है। ग्रूम की निगाह पे भी दुल्हन, निगाह भी दुल्हन पे ही होती है। दुल्हन की निगाह नीचे होती है, दुल्हन किसी को नहीं देख रही होती। लेकिन आजकल की दुल्हनें जो है वो तो जो है वो नीचे नहीं देखती, लेकिन दुल्हन की निगाह नीचे होती है। और मुझे मेरे फादर ने कहा कि 4 बजे निकाह का टाइम है, तुमने अगर रात को ही पार्लर जाना है तो चली जाओ, बट इफ यू आर लेट आई विल नॉट टेक योर हैंड। और मैं तुम्हें ऑल्टर के पे नहीं, तुम्हारा हाथ पकड़ के ऑल्टर पे नहीं लेके जाऊंगा, क्योंकि मुझे टाइम की पाबंदी पसंद है। और मुझे डैडी का खौफ इतना था कि आई न्यू कि ही वाज अ मैन ऑफ हिज वर्ड, कि जब वो उन्होंने बोला है तो वो कुछ भी हो जाए, अगर मैं लेट होंगी तो वो कहेंगे अकेली जाओ। एंड आई डिड नॉट वांट दैट। आई वांटेड दैट डे वाज अ ग्रेट डे इन माय लाइफ। और मैं चाहती थी कि मेरा बाप मेरा हाथ पकड़ के मुझे लेके जाए, और मेरे होने वाले शौहर के हाथ में मेरा बाप मेरा हाथ दे। और आसमानी बाप भी यही चाहता है कि यीशु, जो कि ब्राइडग्रूम, जो कि दूल्हा कहते हैं हमें, उसके हाथ में दुल्हन का हाथ दे। और वो कौन है? वो जो खून से खरीदी हुई है, वो जो पाक है, जिसके अंदर रूह बसता है खुदा का। क्या हम वो कलीसिया हैं जो कि उठा ली जाएगी, जिसको यीशु लेने आ रहा है? क्या हम सुलह के वो जूते पहने हुए हैं कि हम जहां कहीं भी लड़ाई हो रही है हम वहां सुलह करवाने पहुंच जाए? हम में से कई कुछ ऐसे हैं, मैं जानती हूँ, कुछ ऐसे मेरे दोस्त हैं, कुछ ऐसे मेरे जानने वाले हैं, जो कि जहां कहीं कोई लड़ाई होती है ना, वो पतली गली से निकल निकल भागते हैं, क्योंकि वो, उनको सुलह पसंद है, उनको आराम पसंद है, उन्हें शोर शराबा नहीं पसंद। लेकिन हमें तो सुलह के लिए बुलाया गया है।
अगर हम जहां पे लड़ाई है, जहां पे झगड़ा है, अगर हम वहीं से भाग जाए पतली गली से, तो फिर तो हम तो सोल्जर ही नहीं, फिर तो हम सोल्जर ही नहीं, क्योंकि हमें तो सुलह के जूते पहन के जंग में उतरना है और जंग जीत के आनी है। क्योंकि मैं इतना बता दूं कि जहां यस्सु आता है वहां शैतान भाग जाता है। वो खुदा से नहीं डरता, वो यहोवा पाक से नहीं डरता। शैतान ग्रेट आई एम यहोवा पाक से नहीं डरता, वो उसकी हजूरी में जाके आज भी खड़ा होता है। हम अय्यूब की किताब में पढ़ते हैं कि वो जाके खड़ा हो गया और खुदा ने उससे पूछा कि तू कहां से आया है, और उसने कहा मैं दुनिया से घूमता फिरता आया। लेकिन यस्सु के सामने शैतान नहीं खड़ा हो सकता। उसने मौत पे फतहमंदी हासिल की, वो मर गया और उसका मस्खरा उड़ाया गया कि ये जो अपने आप को खुदा कहता है ये मर गया, और ये अगर खुदा होता तो ये तो मर ही नहीं सकता था। इसने तो फरिश्ते बुला लेने थे, उसको रिलीज करवा लेना था। लेकिन यीशु ने कहा मुझसे मेरी जान कोई नहीं लेता, मैं अपनी जान खुद देता हूं। अगर मैं आज भी चाहूं तो मैं 72,000 फरिश्तों को बुला सकता हूं नीचे, और वो मेरी मदद के लिए आ जाएंगे। और फरिश्ते बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। एक फरिश्ता आ जाए तो कितनों को वो एक साथ ही गिरा सकता है, आपको अंदाजा नहीं। और वो आसमान से फरिश्ते मुल्कों के लिए रिलीज हो चुके हैं, हमारे मुल्क पाकिस्तान के लिए और यूके के लिए रिलीज हो चुके हैं। और अब सिर्फ क्या बाकी है, हमारा रूह में एक होना, ताकि हम रूह में एक हों और हम जब परस्तिश करें तो पाक रूह ऐसी कसरत से आए कि वो टाइम जैसे कि पाक रूह ईद पेंतिकोस्त पे उतरा था, उस तरह से लपटें जो कि नजर हर एक को नहीं आती, लेकिन वो रूह की लपटें हर जगह पे फैले, हर जगह पे जुम्बिश करें, और लोगों की जिंदगी में वो काम हो जो किसी आंख ने ना देखी, ना किसी कान ने सुनी, और ना दिमाग ने सोची कि ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमें क्यों पता है? क्योंकि लिखा है। क्या आपने पढ़ा है? अगर आपने पढ़ा नहीं तो आपको पता कैसे कि लिखा है? और अगर आपने पढ़ा है तो हो सकता है आप भूल गए हो, लेकिन कलाम कहता है कि आई विल ब्रिंग थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस। रिमेम्बर क्या चीज हो सकती है? अगर आपने चाइनीज कभी नहीं सीखी तो क्या आपको चाइनीज बोलनी आएगी? कतन नहीं आएगी। रिमेम्बर क्या होता है? जो आपने सीखा होता है। अगर आपने उर्दू सीखी है तो आप उर्दू में कलाम आपको याद आ जाएगा। अगर आपने इंग्लिश में पढ़ा है तो इंग्लिश में याद आ जाएगा। लेकिन इससे एक हाथ आगे जाते हैं, और कलाम कहता है कि हमारे खुदा के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं, सिर्फ हमें बिलीव करने के लिए की जरूरत है, सिर्फ बिलीव, और वो सब कुछ करने में कादिर है। तो वो सोचें कि फीस्ट ऑफ पेंटिकॉस्ट पे वो जो कि दूसरी जुबानें नहीं जानते थे, जब उन पे रूह उतर आया तो उन्होंने जब बातचीत शुरू की तो अपनी जुबान में नहीं शुरू की, उन्होंने किसी और जुबान में शुरू की, और लोग हैरान हुए कि ये तो मेरी बोली बोल रहा है। ये होता है रूह का उतर आना। रूह का दिलों में उतर आना तो क्या होता है कि फिर हम, कलाम में लिखा है कि ही विल ब्रिंग थिंग्स टू योर रिमेम्बरेंस। रिमेम्बरेंस में क्या आती है चीज? जैसे मैं कलाम इंग्लिश में पढ़ा है तो मैं कलाम आपसे जब शेयर करती हूँ तो मैं वर्सेस इंग्लिश की बोलती हूँ, लेकिन वो कसरत का टाइम आने वाला है कि हम दूसरी जुबान में भी बोल सकेंगे, जब रूह की जुम्बिश इतनी तेज और इतनी स्ट्रांग होगी कि आपको जो जुबान नहीं भी सीखी आप उसमें बोल पाएंगे, क्योंकि ये ऐसा पहले हो चुका है। तो क्या फिर नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि कलाम कहता है कि जो दूसरी बारिश, और ये दूसरी बारिश शुरू हो चुकी है, दूसरी बारिश पहली बारिश से दुगनी होगी। इसका क्या मतलब है? कितने लोग थे उस जमात में जो कि उस कमरे में थी, जो एक्ट्स चैप्टर 2 में हम पढ़ते हैं, आमाल के दूसरे बाब में हम पढ़ते हैं, कितने लोग थे? कोई बता सकता है? सब इधर है मेरे साथ? कोई बता सकता है? You should be knowing the number. Numbers are very important. अगर नंबर्स इंपॉर्टेंट नहीं होते तो नूह की किश्ती की
डायमेंशंस नहीं दी होती, टेम्पल की डायमेंशंस नहीं दी होती, न्यू जेरूसलम की डायमेंशन नहीं दी होती। 120 लोग थे, 120 जिन पे रूह उतरा। और कलाम में लिखा है कि आदम की उम्र कितनी थी? आदम की उम्र 900+ ईयर्स। कोई बता सकता है आदम की एग्जैक्ट उम्र कितनी थी? और हवा की कितनी थी? कोई बता सकता है? आदम की उम्र तो लिखी हुई है, लेकिन हवा की उम्र नहीं लिखी। आदम की उम्र 930 साल थी जब वो मरा। 930। आजकल 60 साल का अपने आप को बूढ़ा समझने लगता है, और उसने 130 साल की उम्र में बच्चा पैदा किया था, और 130 साल की हवा भी होगी। तो सोचें कि उस वक्त खुदा ने अपना कहर उस तरह से नहीं किया था कि मौत उनको जल्दी टच कर पाती, क्योंकि वो बहुत करीब थे, खुदा की कुर्बत में थे वो। तो उनको मौत ने बहुत टाइम लगा के टच किया। लेकिन अब हम 6000 साल हो चुके हैं, 6 और ऊपर से ग्रेस पीरियड भी मिल चुका है, 25 साल और गुजर चुके हैं। हर साल एक ग्रेस पीरियड और मिल जाता है कि शायद और लोग आ जाएं। और फिर जब गुनाह होता रहा तो कलाम में कहा, लिखा है, सच लिखा है कि उनकी उम्र कम कर दी गई। और कितनी कर दी गई? 120 साल। अब आजकल के जमाने में कौन 120 साल जीता है? इधर वेस्ट में लोग जीते भी हैं, मैंने बहुत से देखा है। लोग केयर होम्स में, डिमेंशिया है, औरत को, आदमी को कुछ पता ही नहीं है, उसकी 100th बर्थडे मान रही है। Oh, I never want to be that old that I do not know who I am and what is happening in my surroundings. मैं नहीं चाहती। I want to die young. और वो जज्बा जो रसूलों का है, वो मैं और मांगना चाहती हूँ, और आपके लिए मांगना चाहती हूँ, क्योंकि वो हमें दिलेरी देता है गॉस्पेल को प्रीच करने की। क्योंकि हमें वो दिलेरी नहीं, हम डर जाते हैं। हम कभी मौत से डर जाते हैं, कभी हम रिश्तेदारों से डर जाते हैं, कभी हम अपने दोस्तों से डर जाते हैं। और मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, मैं भी इसमें शामिल थी। और मुझे मौत से कभी डर नहीं लगा, लेकिन मुझे दोस्तों से डर लगता था। मेरे फ्रेंड्स क्या कहेंगे, वो मेरे से फिर फ्रेंडशिप नहीं रखेंगे। बट टुडे the spirit of boldness is upon me, is in me, and I do not care. I love my friends. I love my all Muslim friends, Hindu friends, Sikh friends, all friends. I love them. Jew friends, I love them, because love is the first fruit of the Holy Spirit. I pray for them, I fast for them. But the problem is that no man can reach the Father except through Jesus. It is written, I am the way, the truth, and the life. He is the life, and He's the life giver. How? Because He's the Word of God. Word of God. उसके मुंह से निकला हुआ कलमा। और जब हम उसके मुंह से निकले हुए कलमा, जो कि रिटन वर्ड है, जब हम इसको पढ़ते हैं और जब हमारे दिल में ये घर कर जाता है, तो फिर जब ये हमारी जुबान से निकलता है तो ये आग ही मानंद निकलता है। लेकिन अगर ये आप इसको सिर्फ रटते हैं किसी को इम्प्रेस करने के लिए, अगर आप इसको रटते हैं एक कोई मुनाजरा करने के लिए, अगर आप इसको रटते हैं कि मेरी कलीसिया ये जाने कि मेरे पास कितना विजडम है, तो फिर पाकरू आप में काम नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप इसको पढ़ते हैं जानने के लिए खुदा को, कि खुदा के क्या भेद हैं, मैं खुदा की जात को जानूं, मैं यीशु को और करीबी तौर से जानूं, मैं वो तमाम चीजें जानना चाहता हूं, मैं वो तमाम चीजें जानना चाहती हूँ जो मुझे खुदा के करीब लेके आएगा और मुझे इस दुनिया से दूर करेगा, तो फिर पाक रूह आपके अंदर आएगा।
और वो बड़े अजीब मुशेर काम करेगा, जैसे कि मेरी जिंदगी में हुआ। मेरी जिंदगी में पाक रूह मुझे एग्जैक्ट पता है किस दिन मेरे दिल में आया। इससे पहले मेरे मेरे ऊपर सकूनत करता था, और जिस दिन वो मेरे अंदर आया वो 9 अप्रैल 2022 थी, और उसके बाद मुझे कोई नहीं रोक सकता। रूह के कोई काम करने के लिए मुझे नहीं रोक सकता। माई हस्बैंड कैन नॉट स्टॉप मी, ही कैन स्टॉप मी। जो जो के डेली है, मतलब कपड़े खरीदने नहीं खरीदने, जूती खरीदनी नहीं खरीदनी, ही कैन स्टॉप मी डूइंग दैट, विच ही डजंट। लेकिन घर के लिए कोई सामान लेना है, क्या करना है, ही कैन स्टॉप मी डूइंग दैट, एंड आई मस्ट ओबे हिम। बट what he cannot stop me is the spirit that has working within me, जो कि मेरे अंदर आई सकूनत की। 9 अप्रैल 2022 की बात है, और आई हैव नेवर द सेम अगेन। कलाम कहता है कि वो बोल्डनेस देती है रूह, जब आपकी अंदर सकूनत करती है तो बोल्डनेस देती है। अगर आपके ऊपर सकूनत कर रही है तो आपके अंदर वो बोल्डनेस नहीं आएगी, जैसे मेरे में नहीं थी। तो आज हम जैसे कि हमने गीत भी गाया, रूह पाक उतरा, तो हम गाते हैं रूह, और रूह उतरता भी है। लेकिन रूह आता है, जुम्बिश करता है, इधर बैठा उधर बैठा, किसी को फील हुआ, कोई रोने शुरू हो गया, कोई कांपने शुरू हो गया, कोई गिर गया, उस जुम्बिश करके रूह वही रहता है, लेकिन वो आपको प्रेजेंस का एहसास दिला रहा होता है। वो एहसास खत्म हो गया, आप घर गए, आप खाली गए। लेकिन कई जो है जिन पे रूह सुकूनत करता है, वो रूह के साथ भी जाते हैं। वो उनको फिर ये होता है कि हम और जाने खुदा की बातों को, तो वो कलाम पढ़ना शुरू कर देते हैं और कलाम के भेद जानना शुरू कर चाहते हैं कि जाने। लेकिन जिस दिन आपके अंदर पाकरू आएगा, जिस दिन आपके अंदर पाकरू आएगा, आप तब्दील हो जाएंगे। आप ऐसे तब्दील होंगे कि आप वो फोर्स होंगे जो शैतान जो है आपको जो है वो गिरा नहीं सकेगा। तो सुलह के जूते पहने। और मैं रिक्वेस्ट करूंगी, अगर आपको आवाज आ रही है, नासरा, आज की आप वर्स पढ़ेंगी जो मैंने डिक्लेरेशन के लिए आज ग्रुप में दी है। आपको मेरी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है नासरा? जी जी सिस्टर। आवाज आ रही है आपको सॉरी। मेरी? जी सॉरी, नेटवर्क इशू था। ओके ओके, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, दैट्स ओके, क्योंकि कट कट की आवाज आएगी तो उसका कोई फायदा नहीं। मैं खुद ही पढ़ती हूँ, आपको मेरी आवाज तो आ रही है ना? जी आ रही है। ओके ओके, लेट्स रीड। ये मैं आपसे आज एक जो जो इस कलाम के उससे है वो मैं पढ़ूंगी हिस्सा। एक सेकेंड में अपनी जरा ग्लासेस लगा लूं। ये होता है उम्र का तकाजा कि आप ग्लासेस पहननी पड़ती हैं। और एफसीओ का खत, उसका 6वां बाब, और ये मैंने शेयर भी किया था कल, ये बहुत जरूरी है। और आज हम सुलह के जूतों के बारे में बात कर रहे हैं। तो इसमें लिखा है, 15वीं आयत में लिखा है, एंड हैविंग शॉर्ड योर फीट विद द प्रेपरेशन ऑफ द गॉस्पेल ऑफ पीस। तो गॉस्पेल ऑफ पीस, ये गॉस्पेल, ये जो 4 गॉस्पेल है, इसमें यीशु के बारे में ही लिखा हुआ है। और यीशु की मुनादी का मतलब है कि आप पीस प्रोक्लेम कर रहे हैं। यीशु के अलावा और कहीं से आपको पीस नहीं मिलेगा। पीस थोड़ा से टाइम के लिए मिल सकता है कि आप ने कोई काम किया, आपको खुशी मिली, आपको अच्छा लगा, आपको पीस मिल गया। आपने कोई, आपको जॉब मिली, आपको पैसे अच्छे मिलने लगे, आपको पीस मिल गया। आपने अपना घर के सोचा था बनाए, आपने घर बना लिया, आपको पीस मिल गया। आपकी अपनी छत आ गई, आपको पीस मिल गया। लेकिन एक ऐसा पीस है जो कि यीशु जब आपके दिल में सुकूनत करता है तो आपको मिलता है। और वो ऐसा पीस होता है जो कि मुझे मिला है कि जब मेरे 5 बच्चे मर गए और वो खुदावन में सोए, क्योंकि जो मरता है वो सोता है। तो वो
अब मुझे उसकी परेशानी नहीं, उसका गम गम तो है, लेकिन मुझे उदास में हो, लेकिन मेरे दिल में शादमानी रहती है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम जो है जिंदगी में, अगर आपका सुख अगर आपका छीन रही है, तो फिर आपके दिल में शादमानी नहीं है। जॉय जो है, एवरलास्टिंग जॉय जो है, वो आपके दिल में तब आता है जब ख्वाह मौत हो, चाहे तंगी हो, चाहे खाने को हो नहीं हो, चाहे आपके घर पे सर पे छत हो नहीं हो, आपके दिल में शादमानी रहती है। और अगर आप अपनी निगाह अपनी प्रॉब्लम्स पे करते हैं, अगर घर में बीमारी है, अगर घर में तंगी है, अगर कोई भी प्रॉब्लम जिंदगी की चल रही है, तो फिर आप पीटर की मानिंद हो जाते हैं, जो कि जब तक उसकी नजर यीशु पे थी तो वो नहीं डूबा, और जैसे ही उसकी नजर किसी तूफान की तरफ पड़ी तो वो डूबने लगा। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, और नाउ शायद लोगों को कहीं ज्वाइन करना था या कहीं जाना था, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान में ये इवनिंग टाइम है। एंड नाउ आई हैव 2 वॉरियर्स लेफ्ट विद मी, एंड दीज 2 आर हस्बैंड एंड वाइफ, एंड टुडे I want to pray especially for you as as you are united in the flesh and you walk in the spirit. खुदावंद आपको कसरत से आगे इस्तेमाल करेगा, रूह में इसी तरह से बढ़ते रहें, क्योंकि रूह की जंग जो है वो हमने जीतनी है, और हम जीत चुके हैं। अब सिर्फ दुनिया को दिखाना है, क्योंकि रूह में हम जंग जीत चुके हैं। अब सिर्फ दुनिया का देखना बाकी है, सिर्फ दुनिया का देखना बाकी है। तो हम सुलह के जूते पहनते हैं, हम लड़ाई हमें पसंद नहीं। मैं चाहती हूँ कि जहां पे भी लड़ाई हो वहां पे सुलह की जाए, लेकिन कई ऐसी जगह होती है जहां पे सुलह से ज्यादा आग की जरूरत होती है, क्योंकि कलाम कहता है, लिखा है कि मैं सुलह कराने नहीं आया, मैं तो जंगे कराने आया हूँ। तो ये तो फिर मुतजाद होगी। एक तरफ हमें कहा जा रहा है कि आप सुलह के सलामती के जूते पहने, दूसरी जगह बोला है कि जी मैं जंग कराने आया हूं। तो वो इसलिए क्योंकि कलाम कहता है कि 2 मुख्तलिफ किस्म के कपड़े अगर आप जोड़ेंगे, पैबंद लगाएंगे, तो क्या होगा? कपड़ा फट जाएगा। जब सिलाई करते हैं तो कपड़ा एक जैसा होना चाहिए। अगर सिल्क को कॉटन के साथ नहीं सिया जाता, लॉन को सिल्क के साथ नहीं सिया जाता, अगर एक श्रिंक किया हुआ कपड़ा हो और दूसरा श्रिंक किया ना हो, कलाम कहता है कि वो अगर आप सिएंगे, एक ही जैसा कपड़ा है, लेकिन अगर एक श्रिंक किया हुआ है और एक श्रिंक किया हुआ नहीं है, अगर आप उसको अगर सी देंगे तो फिर क्या होगा? वो भी फट जाएगा। इसका मतलब ये है कि वो लोग जो खुदावंद यीशु में नहीं है, इवन हस्बैंड एंड वाइफ्स, इवन बहन भाई, इवन आपके माँ बाप, दादा दादी, कोई भी आपके दोस्त है बाप, अगर वो यीशु में नहीं चल रहे, तो फिर वहां पे आग की जरूरत है। आग का मतलब ये है कि आपने उन्हें रूह का कलाम बताना है, और अगर वो एक्सेप्ट कर लें तो वो यीशु को जान लेंगे, और अगर एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर वो आग की तरफ बढ़ रहे हैं। तो फिर उनको आप अकेले तो छोड़ दें, क्योंकि आर्ग्यू करने का कोई फायदा नहीं। आर्ग्यूमेंट से कोई जंग नहीं जीती जाती, क्योंकि हम अमन के शहजादे हैं। यीशु ने कभी किसी रबी से आर्ग्यूमेंट नहीं की। वो जो कलाम जानते थे, उनके साथ कभी आर्ग्यू नहीं किया, लेकिन दुआ की, दुआ की। तो आप भी, जो आपके साथ आर्ग्यू करता है, जो भी अनबिलीवर्स हैं, उनके साथ आर्ग्यूमेंट्स ना करें, उनके लिए दुआ करें। और दुआ हथियार है कौन सा? सातवां हथियार है दुआ। और आज हम तीसरे हथियार के बारे में सीख रहे हैं कि सुलह तो आप करें जहां पे आपको रूह बताता है कि सुलह की जरूरत है, क्योंकि कहाँ पे सुलह की जरूरत है और कहाँ लड़ाई की जरूरत है, वो भी आपको रूह ही बताता है। तो रूह के हिसाब से जब आप चलेंगे तो आप हर जंग जीतेंगे, हर जंग जीतेंगे। रूह आपको बताएगा कहाँ बोलना है, कहाँ चुप रहना है, कहाँ आग जैसी निकलनी चाहिए आपकी मुंह से, और कहाँ चुप होके सिर्फ ही सिर्फ बरसात होनी चाहिए अमन की। ये रूह आपको बताएगा, क्योंकि हर जगह आप आग नहीं बरसा सकते, और हर जगह आप पानी बरसा नहीं सकते।
आपके पास इतना दिमाग नहीं, आपके पास इतना विजडम नहीं, इतनी हिकमत नहीं कि आप अपनी हिकमत से ये सब कर सकें। लेकिन जो हिकमत खुदावन के तख्त से आती है, उससे आपको पता चलता है कि कहाँ पे आग फेंकनी है और कहाँ पे बारिश बरसानी है। सलामती की बारिश, सलामती की बारिश बरसानी है, सुलह के जूते पहनने हैं और फतेहमंदी का झंडा, सफेद झंडा लहराना है और कहना है हालेलुया, द बैटल इज द लॉर्ड्स। ये जंग हमारे खुदावन की है और वो हमेशा जीतता है। उसने कर दिखाया। और क्या हो सकता है? मौत पे फतेहमंदी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है? अंधी आंख खोलना, लंगड़ों को चलाना, बहरे कान खोलना, कोड़ियों को पाक करना, हर किस्म की बीमारी को दूर करना, औरत को भी जिंदा कर देना, आदमी को भी जिंदा कर देना। माना जाता था कि 3 दिन तक किसी की रूह जो है वो घूमती है जमीन पे और फिर आसमान पे उठाई जाती है। उसको भी, उनकी जो मिथ थी ये, उसको भी एक कदम आगे जाके 4 दिन के मुर्दे को जिंदा कर दिया। तो खुदावन ने कहा कि जो चीज दुआ से नहीं हो सकती, वो उसके लिए रोजा रखो। उसने खुद 40 रोजे रखे। तो आप भी जब रोजा रखते हैं तो रेडी रहे कि जब रोजा रखा जाता है तो शैतान आ जाता है टेम्प्ट करने के लिए, जैसे यीशु के पास वो आया। तो जब टेम्पटेशन आए तो फिर क्या करना है? फिर कलाम इस्तेमाल करना है, कलाम इस्तेमाल करना है और कहना है ये लिखा है। जब वो कहेगा, कलाम की कोई बात करेगा, क्योंकि वो आपसे पुराना है, वो आपसे पहले बनाया गया है, तो आपने उससे फिर क्या करना है? आपके रूह की 2 धारी तलवार इस्तेमाल करनी है और आपने कहना है ये भी लिखा है। लेकिन ये आप कब कह सकते हैं? जब आप खुद कलाम जानते हैं। अगर आप कलाम नहीं जानते, अगर आपने कलाम नहीं पढ़ा, अगर आपने 66 किताबें बाइबल में हैं, अगर वो नहीं पढ़ी हैं, तो फिर आप कैसे कहेंगे लिखा है? तो कलाम जानना बहुत जरूरी है। सुलह की दुआ मांगे, खैर और आफियत की दुआ मांगे, लेकिन जान लें कि वर्ल्ड वॉर 3 अप्रोच कर रही है। लेकिन हम एस्केप कर जाएंगे, क्योंकि हम ऊपर उठा लिए जाएंगे और हमारे जो अजीज और अहबाब जो खुदावंद यस्सू में सोए हैं, वो पहले उठाए जाएंगे और हम सब वो जगह होंगे जो हमारे लिए तैयार हो चुकी है। खुदावंद यीशु कहता है मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं और फिर मैं तुम्हें लेने आऊं। तो वो लेने आ रहा है, अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है। और इस वक्त है कि आपने को, मैंने सुलह का आज मैसेज बताया कि आपने सुलह के जूते पहनने हैं। और सुलह के जूते पहनने का मतलब ये है कि मसीह की प्रीचिंग किसी से शेयर करनी है, किसी को बताना है कि यीशु आपके लिए मुआ और वो आपको जिंदगी देना चाहता है। अगर कोई इनकार करता है तो कोई बात नहीं, आप उसके लिए दुआ करना शुरू कर दें, आप उसके लिए रोजा रखना शुरू कर दें। अपने कुलीग्स के लिए दुआ करें, अपने कुलीग्स के लिए रोजा रखें, अपने अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ रखें करें, अपने रिश्तेदारों के लिए दुआ करें। मैंने जंगें जीती हैं रोजे रख के, तो क्या आप नहीं जीत सकते? कलाम का फॉर्मूला वही है, आप अप्लाई करेंगे वो जरूर काम करेगा। आपके पास अगर की नहीं तो फिर आप की में लॉक में की नहीं लगा सकते। तो ये तमाम कीज जो है ये कलाम में पाई जाती हैं। और अब एक की है जो हम इस्तेमाल करने लगे हैं। रूम में मेरे साथ रहें और मुझे आपकी सिर्फ से सिर्फ एक आमीन चाहिए और ये खुल जाएंगे, बंद दरवाजे खुल जाएंगे, दिलों के बंद दरवाजे खुलेंगे। आज हमने दुआ की और कलाम कहता है मैं खड़ा हूं, मैं दिलों के दरवाजों पे खटखटाता हूं। जो भी दरवाजा खोलेगा, इस दरवाजे को हम अंदर से ही खोल सकते हैं, जो भी खोलेगा मैं अंदर आऊंगा। तो यीशु इस वक्त पाकिस्तान में दिलों के दरवाजों पे नॉक कर रहा है और कौन जो भी दरवाजा खोलेगा, वो एक ने दरवाजा खोल लिया और खुदावंद यीशु उसकी जिंदगी में आ गया। अब दूसरी आमद है पाक रूह की। पाक रूह की आमद कब होगी? उस पे रूह अब सकूनत करता है।
जब कश्मीर में थे तो मैंने सबके लिए जब दुआ की तो रूह आपकी जिंदगी में सुकूनत कर रहा है। रूह की आवाज सुने, रूह की आवाज सुने कि पाक रूह आपको क्या कह रहा है, और रूह में बढ़ते चले जाएं। और इस वक्त हम रूह में साथ रहते हुए इस वक्त दुआ करेंगे। आज जैसे कि दिल में मेरे दुआ डाली थी, और आप मुझे देख नहीं सकते, लेकिन आज मैं हरा पहन के बैठी हूँ और मैं अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ कर रही हूँ। मैं अपने तमाम मुसलमान भाइयों बहनों के लिए दुआ कर रही हूँ। मैं अपने तमाम कैथलिक बहन भाइयों के लिए दुआ कर रही हूँ, क्योंकि कलाम के जो कि 10 अहकाम में जो पहले 4 हुक्म है वो पूरे नहीं हो रहे। उसकी उसकी जो है वो खिलाफ वर्जी हो रही है। और उनमें लिखा है कि तू अपनी कोई भी चीज जो है किसी की मूरत ना बना और उसको सजदा ना कर। अभी हम रोम से आए हैं और मेरा दिल बहुत दुखा कि वहां पे इतनी मूर्तें थी कि लोग वहां सिजदे कर रहे थे और चूम रहे थे। और वहां पे वो पतरस के जो टेम्पल बनाया गया है, उधर पतरस का मुजस्मा तो बनाया सो बनाया, वो भी गुनाह है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हाथी का भी मुजस्मा देखा, मैंने वहां एक ड्रैगन का भी मुजस्मा देखा, मैंने वहां पे सांप का भी देखा, मैंने वहां पे एक हेजॉग का भी देखा, मैंने वहां पे एक कौवे का भी देखा। ये पाक मकाम है। पाक तरीन मकाम कौन सा होता है? कलाम बताता है वहां मूर्तें नहीं होती आदमियों की, वहां ड्रैगन्स नहीं होते, वहां किसी औरत की का स्टैच्यू नहीं होता, किसी आदमी का स्टैच्यू नहीं होता, वहां किसी बछड़े का नहीं स्टैच्यू होता, कोई पत्थर को नहीं हम चूमते, किसी पत्थर को हम नहीं चूमते। और जो चूमता है वो मैं बता रही हूं आज के बाद उस पे खुदावन का कहर उसके पीछा करेगा, उसका पीछा करेगा, क्योंकि खुदावन हमारा गयूर खुदावन है। द स्क्रिप्चर सेज ही इज अ जेलस गॉड। और अगर आप पत्थरों की पूजा कर रहे हैं, उनको चूम रहे हैं, तो मान लें कि खुदावन का कहर आपके आप चेस करेगा। अगर आप यीशु को नहीं जानते और नहीं उसको सजदा करते जो कि खून और गोश्त में आया अपना आप दिखाने के लिए आपको, और आप अभी भी पत्थरों को चूम रहे हैं और पत्थरों से मांग रहे हैं, तो फिर आपकी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ डार्कनेस है, डार्कनेस है। आपका दिल काला है और काली जगह में खुदा नहीं बसता, काली जगह में खुदा नहीं बसता। हम दिए लेके आ रहे हैं और हम जिंदगियों में रोशनी करेंगे। क्या आपके दिए में तेल है? अगर नहीं है तो रूह का तेल मांगे, क्योंकि जो आपके हाथ में दिया है वो बुझ जाएगा। हवा जब तेज चलेगी, आंधियां आएंगी, तूफान आएंगे और आने वाले हैं। मैं आपको बता रही हूं बहुत तूफान वाले हैं, और उन तूफानों में मौत, बीमारियां, तंगियां, बिजनेस कोलैप्स होना, जो भी आप सोच सकते हैं प्रॉब्लम्स एक जिस्मानी जिंदगी में रहते हुए हमारे साथ हो सकती है, वो तमाम चीजें आ रही हैं। और अगर आप की जड़ें मजबूत नहीं हैं तो आप इन सब का, इस खुदावंद के कहर का आप जद में आ जाएंगे। क्योंकि जब मौत का फरिश्ता आया था तो उसने सिर्फ उसको घर को छोड़ा था जिसपे लहू लगा हुआ था। आज भी मौत का फरिश्ता जब आएगा तो वो उसी घर को छोड़ेगा जिसपे लहू है, और वो है बर्रे का लहू, और वो है यीशु का लहू। और एक दिन में सब कोई नहीं मरने वाला। मैंने कहा खुदा का कहर जो है वो 15 जून से जो है जिंदगियों में, ओह यस फादर गॉड हैव मर्सी, हैव मर्सी। खुदा अभी भी वक्त दे रहा है लोगों को, और वो शुरू होगा उसका टेस्टिंग कि कौन मेरे पीछे चल रहा है। और इससे पेशतर कि आपकी जिंदगियों में कहर आए, जिंदा खुदा को जाने, जिंदा खुदा को जाने, क्योंकि ये दुनिया खत्म होने वाली है। इस टाइम जिसको जैसे हम जानते हैं ये खत्म होने वाला है और हम इटर्निटी में दाखिल होने वाले हैं। Let's pray. Heavenly Father, glorious Lord, I come into your presence with thanksgiving and praise. I bring your creations, Father God, that you have created, the seed of Adam, Father God.
I bring the Catholic community into your presence. I bring all my Muslim brothers and sisters into your presence, Father God. They are your children. Why? Because they are the seed of Adam, Father God. They do not know you because they do not know whom you sent. They do not know whom you sent, and you sent your only begotten Son in flesh so that we could see your reflection, the love that you have for us. And he was killed so that he could teach us that we must die for our neighbor. We must sacrifice for our neighbor because that is the 12th commandment. Thou shalt love thy neighbor as thyself. Father God, हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ करते हैं, और जैसे कि आज कोयटा के लिए, कोयटा से परस्तिश होती है और हम कोयटा के लिए खास दुआ करते हैं हर फ्राइडे। खुदावन, हम कोयटा के नेबर्स, और हमारे नेबर्स कौन है? हमारा नेबर सिंध है, हमारा नेबर पंजाब है, हमारा नेबर पश्तूनख्वा है, खैबर पश्तूनख्वा है, हमारा नेबर कश्मीर है। हम सब के लिए दुआएं मांगते हैं। खुदावन, खुदावन अपनी बरकतें भेज। मैं इनके लिए बरकतें चाहती हूँ खुदावन, लेकिन सबसे बड़ी बरकत ये है यीशु को जानना, क्योंकि यीशु को जाने बगैर हम अपनी जिंदगी नहीं हासिल कर सकते। तू पाक है, तू पाक है, और तू नहीं गैर माबूदों को चाहता कि हम जाने और उनको माने। और सबसे बड़ा गुनाह है कि हम पाकीज़ा ना हों और तेरे हजूर पाकीज़गी में ना ठहरें। तूने एक आदमी को बनाया और उसके लिए एक औरत बनाई, और ये पाकीज़गी है। वो तमाम लोग जो इस पाकीज़गी को नहीं जानते, नहीं फॉलो करते, और उसमें से बहुत हमारे क्रिश्चियंस भी शामिल हैं खुदावन, और वो जो अपने आप को पाकीज़ा कहते हैं और नापाक होते जाते हैं खुदावन, उन्हें तंबीह कर, ताकि वो तेरी पाकीज़गी को समझें, वो तेरी पाकीज़गी को समझें। खुदावन, तू हमें और पाकीज़ा बना रूह में, क्योंकि जो रूह में पाकीज़ा होते हैं वो ही तेरे तख्त तक पहुंच सकते हैं खुदावन, अदरवाइज हम तेरे तख्त तक भी नहीं पहुंच सकते। खुदावंद, आज हमने तेरा तख्त बिछाया, तू तख्त नशी हुआ, तूने हमारी आवाजें सुनी, हमारी दुआएं तेरे हजूर बखूर की मानिंद पहुंची और खुदावंद कबूल हुई, और तूने फरिश्तेगान को भी भेजा, जैसे कि मेरी आंख ने देखा कि तूने फरिश्ते भी 2 और फरिश्ते रिलीज किए पाकिस्तान के लिए खुदावंद। एक तूने पहले रिलीज किया था और आज 2 और रिलीज किए। खुदावंद, तेरा शुक्र करती हूँ, क्योंकि तू वो खुदावंद है जो हमारे लिए फरिश्तेगान भेजता है। जबूर 91 में कहता है कि मेरे एक तरफ 1000 और दूसरी तरफ 10,000 गिर जाएंगे और मुझे कुछ नहीं होगा। खुदावन, तू वादों का खुदावन वफादार खुदावन है, और मैंने तो तेरी वफादारी देखी है, मैंने तेरी वफादारी हर लम्हे देखी है खुदावन। तू अपने वादों में सच्चा है खुदावन, और तू दुआएं सुनता है खुदावन। मेरा ईमान है कि तूने आज भी ये दुआ सुनी है, कबूल किया, और आगे आने वाले दिनों में तू इसका जवाब भी देगा, बशर्ते कि हम रसूलों के उस जज्बे में चलते रहें कि हमें कोई आंधी, कोई तूफान जो है हमें रोक ना सके, टोक ना सके, और ये ऐसा फ्लड, ऐसा तूफान आए कि जिंदगियों को सैर करने वाला हो, और जिंदगियां सैराब हो और बरकत पाए, क्योंकि तू बरकत देने के लिए राजी है। खुदावन, इस जोड़े को तेरे हजूर में लेके आती हूँ खुदावन, खास तौर से, और वो दिलेरी मांग लेती हूँ जो डैनियल को मिली, और उसके सामने जब शेर आए तो उसके मुंह बंद हो गए। खुदावन, हर वो शेर जो इस कपल के अगेंस्ट खड़ा होता है खुदावन, उनके मुंह बंद कर देती हूँ रूह की आग से, उनके रूह बंद कर देती हूँ रूह की आग से। खुदावन, ये जोड़ा तेरे रूह में आगे बढ़ता चला जाए, जैसे ये गोश्त में बढ़ते हैं। इनके बच्चों को भी रूह बदन जान तेरे हाथ में देती हूँ खुदावन। कोई भी शेर जो इनकी तरफ आंख उठा के देखे खुदावन, उसकी आंखें चुंदिया जाए। कोई भी शेर जो इनकी तरफ फाड़ खाने के लिए तैयार हो खुदावन, उसके मुंह बंद हो जाए खुदावन। ये तेरे बंदे है, ये तेरी बंदी है खुदावंद, ये रूह में एक है खुदावंद, ये जिस्म में भी एक है, क्योंकि तूने इन्हें जिस्म में एक किया खुदावंद। तेरे पाकीज़ा खुदावंद है, तू हमें एक करता है जिस्म में, और तू हमें रूह में भी एक करना चाहता है खुदावंद। खुदावंद, इनके लिए बरकत की दुआ मांग लेती हूँ खुदावंद, जैसे तूने इनको
गोश्त में बढ़ाया खुदावन, इनको और रूह में बढ़ा खुदावन, इनको रूह में बढ़ा ताकि वो रसूलों के ये वो काम करें जो कि अब ऑब्सलीट नहीं हुए, अब दूसरी आमद में बहुतातगी से होने वाले हैं। ये वो हाथ हों, चार हाथ, जो लोगों के लिए दुआएं करें और दुआ और लोग शिफा पाएं और लोग माजात पाएं। आगे आने वाले दिनों में खुदावंद आपके हाथों पे वो बरकत रखेगा, वो अनॉइंटिंग, वो मसा छोड़ेगा कि आप लोगों के लिए दुआ करेंगे और लोग हील होंगे और लोगों की जिंदगी मौजात होंगे। खुदावंद यीशु आज आपको चुन रहा है। क्या आप रेडी हैं? Yes, I'm ready. Amen. ग्रेट। जब आपने एग्री किया कि आप रेडी है, तो आपको मैं में होते हुए कहती हूं कि रिसीव इन द नेम ऑफ जीसस। डू यू रिसीव इट? I receive. I receive. I receive. Amen. Thank you, Heavenly Father. There are your mighty warriors. आज ये इन्होंने रिसीव किया है और रूह में रिसीव किया है, और जिस्म में हम आगे आने वाले दिनों में देखेंगे कि रूह क्या काम कर सकता है। रूह जिंदगियां तब्दील कर सकता है अंदर से, और रूह जब मुंह से आग की तरह निकलता है तो आगे खड़े होने वाली कलीसिया पे भी रूह का असर होता है और आग जाके हर एक को छूती है। खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। आप परस्तार हैं डैनियल, और नासरा आप दुआगो हैं। ये बहुत खूबसूरत जोड़ा है। खुदावंद आपके बड़ी जंगें जितवाएगा। हम मिल के स्टार्स और डेविड में जब काम कर रहे हैं तो खुदावंद ने हमें बड़ी जंगें जितवानी है। आपका भाई आपके साथ परस्तार है, हमारे साथ अभी एक और आपका दोस्त है सागर, जो कि पास्टर बन रहा है और जो दुआगो है और वो परस्तार भी है। आप सब चुने हैं खून के खरीदे में, और हम सब एक फोर्स की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आज की मीटिंग बहुत लंबी हो गई, कुछ और कहीं पे उनको जाना था, वो चले गए, लेकिन उन सबको मैं ब्लेस करती हूँ जो यहाँ पे मीटिंग में मौजूद थे। हम शुरू हुए थे 8 से, और 8 था नंबर जो कि मैंने कहा कि ये कान के लिए है। 8th नर्व कान को सप्लाई करती है, और आप तक मेरी आवाज पहुंची है, उन तक भी पहुंची है, और जितनी आवाज नहीं पहुंची मैं रूह के वसीले से उनके लिए दुआएं करती हूँ, और वो मेरे साथ है, वो मेरे दुआएं सुनते हैं, वो अग्रीमेंट में आते हैं, वो आमीन बोलते हैं। उनके लिए भी दुआ गो हूं कि खुदावंद उनकी जिंदगियों में काम करे, और हम मिल के जब फोर्स के तौर पे खड़े होंगे तो पाक रूह काम करेगा। हम नहीं काम करेंगे, पाक रूह काम करेगा। हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. गॉड ब्लेस यू। नासरा दुआ रुबानी पढ़े और हम इसको क्लोज करते हैं। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक मना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में ना पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। आमीन आमीन आमीन। अब खुदा उनका फजल हमेशा तक आपके साथ रहे। शालोम शालोम शालोम। जाएं और शालोम। अमन फैलाएं। शालोम। शालोम। गॉड ब्लेस यू। God bless you.